Please go ahead, sir. We are live now. Namaskar, good afternoon, and welcome to another edition of our webinars in the series Illness to Wellness. As you all know, we've been doing these webinars since past 2 years, since the times of COVID, when we shifted over, when we started doing the webinars. Earlier, we were conducting contact programs, lifestyle awareness programs, and camps going out into communities, making people aware of the lifestyle diseases, checking their blood pressure, sugar, and giving consultation to them. So this initiative has been going on since many years now, and we are very thankful to SOCHM and particularly our today's host, Shri Anil Rajputji, who's also the chairman of CSR Council of SOCHM, who's been behind all these programs. So today, in the topic that we're going to discuss is moving well, living well. So I think this topic is so wonderfully selected because life is actually all about moving. And if you want to have a good life, if you want to live well, then obviously you need to move well also. So this is going to be uh, in celebration of the Bone and the Joint Week of 2022. So I would invite and I would request Shri Anil Rajputji sir to give a brief introduction and start the session. So over to you. Thank you very much, Dr. Kesri, for your kind words. It's my proud privilege to welcome Dr. Mukesh Shankar, clinical consultant, Fortis Hospital, Noida, and Dr. Ramkinkar Jha, who will be joining us shortly. He is Chief and Unit Head, Orthopedics Unit 3, Artemis Hospital, Gurugram. And of course, Dr. Rajesh Keshri, Founder and Director, Total Care Control, Delhi NCR, and EC member, RSSDI. And good afternoon and warm welcome to yet another interesting webinar on moving well and living well, organized by SHM under its Illness to Wellness program. I must take this opportunity to thank all the doctors and health professionals who have been collaborating with us and enthusiastically supporting the Illness to Wellness campaign that generates awareness on various aspects of health and health related issues and aims to sensitize people on healthy living through holistic measures. Given that Bones and Joint Action Week is just around the corner, which is held annually between October 12th and 20th, today's discussion will center around prevention, management, and treatment on conditions affecting our bones and joint health. Our bones are one of the most critical components. A person's structure is maintained by their bones. They play many vital roles, such as protecting organs, maintaining muscles, and storing calcium. Age and bones have unique relationship. When we are young, our bones are in top shape. But as we start aging, bone health starts getting affected. This is why each of us need to be well informed about the importance of bone health throughout our life. It is significant for us to understand that while we might take bone strength for granted during our younger age, it must be prioritized as we grow older. Aging is associated with an increased risk of diseases related to musculoskeletal disorder, low back pain, knee pain, and bone pain in the aging population needs attention as the average life expectancy is increasing
India is home to around 139 million people aged 60 years and above, which accounts for approximately 10% of the total population, and it is projected to increase to 319 million, 19.5% in the year 2050. So the size is humongous. It is going to much more challenging times as India grows in number and so the aging population in our country. In India, osteoporosis, in which bones become very fragile and are more likely to break, affects an estimated 50 million people. Older adults with osteoporosis are most vulnerable to breaks in the wrist, hip, and spine, which seriously limits mobility and independence. Arthritis, a painful joint problem, is the most frequent joint disease with a prevalence of 22% to 39% in India. Commonly known as a silent disease, bone density problem show no significant symptoms and in fact are very difficult to notice in the initial stages. Nonetheless, one should not ignore signs such as frequent bone fractures, lower back pain, changes in posture, teeth loss, or bleeding gums. We must also take good care of ourselves to maintain sound bone health so that old age related bone disorders are avoided. First and foremost, staying active is a must. Performing daily exercises, which includes brisk walking and strengthening of joints, are important to improve flexibility and strengthen your bones. Maintaining a stable, healthy weight can help support bone health as being underweight and overweight. Both impair the bone quality and increases the risk of fractures with minimal trauma. Intake of proper diet is vital for healthy bones. Diet rich in vitamins like vitamin D, vitamin K2 are essential for bone health. Vitamin D helps in calcium absorption, while vitamin K2 prevents bone loss by binding minerals in the bone. Vitamin D is available when sunlight falls on the skin and K2 from liver, eggs, meat, along with cheese and soya. Foods rich in magnesium, zinc, omega-3 fatty acids also help in bone formation and decreases bone loss. Importantly, recommended daily dose of calcium is an absolute must for healthy bones. Women, especially during pre and post menopause, are more susceptible to degenerative issues of the bone and should, on their own, increase their calcium intake during this time. If you take care of your bones, they will support you for a lifetime. Although everyone will lose bone mass with age, building strong bones early in life will certainly prevent weakening of bones later. We are indeed privileged to be joined by eminent doctors who have an in-depth understanding and deep knowledge of the subject at hand today. We look forward to hearing their expert views on various aspects of this problem, preventive interventions, and mitigating strategies to address challenges related to bones
and joints. I welcome them once again and look forward to enriching discussion. I wish this webinar a great success. Thank you and Jai Hind. Over to you, Dr. Kesri. Thank you, sir. Thank you so much for such a nice and elaborate introduction to the topic. And you have actually set up the whole framework of discussion that we are going to have today. And so many new, I would say, so many new points have popped up in your introduction to the topic. So thank you. And once again, welcome, Dr. Mukesh Shankar. Dr. Saab, I'd like to request you to highlight some facts about bones, which I think probably the common people don't know much about or don't pay attention to. That yes, bone plays a very important in our musculoskeletal system. It provides support, it provides attachment to the muscles, but bones play a much more important role in the functioning of the whole body. So could you please enlighten us about some other functions, lesser known functions of the bones, but which still are very important? You're on mute, sir. Please unmute yourself. Thank you for having me here. So about the bones, as we all know, the bones form a framework of our body. It gives a structure to our body, first and foremost. We divide the musculoskeletal system in three parts, basic three parts, in which there are bones, there are muscles, tendons, and all those. And the third thing are the nerves that initiate the function at the bones. So we all know the skeletal part of the bone, the role of bones in maintaining our structure, and although we know the importance of bone and joints in our mobility, but one important role of bones in our body can be it acts as a storehouse of calcium. So all our calcium is stored in the bones. Almost 90% of the calcium in our body is stored in the bones. Calcium जो है, it is needed in much more functions rather than just maintaining a good bone health, because calcium का importance है muscle movement में, brain functioning में, nerve की functioning में. ये जितने भी functions हमारा brain, nerves and ये सारी कुछ करता है, इसमें भी calcium का काफी बड़ा role है. तो ये जो calcium का metabolism है, that is overall controlled by the bones. If suppose आप कम calcium intake कर रहे हैं, तो what the body does is that it takes out some calcium from the bones and use it for these important functions. इसमें आपके functions तो regularly normally हो पाते हैं, but then what happens is the bones become weak. For an example, I'll say, अभी जैसे introduction में भी हमें बताया गया था, in जो mothers are expecting or who have given birth, उनमें calcium requirement बढ़ती है. तो in them, doctors prescribe them supplements for calcium and vitamin D and all during the pregnancy and even during breastfeeding. We see a lot number of patients who come to us after delivery or during pregnancy with complaints of backache. The basic reason is this. What happens then is that body को उस time ज़्यादा ज़रूरत होती है calcium की to make the bones of the baby, to deliver calcium in milk also. So उस time the requirement of calcium increases. And if that patient, if the mother is not taking enough amount of calcium, then the body absorbs calcium or removes calcium from the bone and supplies it to the baby. उस time पे the bones become weak. We start facing bony problems or orthopedic problems such as backache or joint pains. We have seen mothers who have just delivered complaining of backache for months because they did not take calcium supplements, they did not have a good diet, and in result they have actually developed a deficiency in their bones. So bones ka role apart from maintaining a good structure and movement is that it acts as a storehouse of calcium. So this is one of the important aspects that everybody should know, and at least every to-be mother or a new mother should know. So this is one function of bone. Yes, definitely. This is a very important function. And I would just like to highlight here, one of the important functions of the bone is that it contains the bone marrow, which is responsible for the growth and development of the blood. तो जो शरीर में हमारे blood बनता है, जो white blood cells बनते हैं तरह तरह के, they actually start their life journey inside the bone. तो bone के बहुत सारे function हैं और bone is also now considered to be an endocrine organ. Bone secretes lots of
hormones, lots of chemicals, which ultimately have effect in other organs and other parts of the body. So bone is actually a very important organ to us. And the spectrum of our interest is so wide that it's very difficult for me even to decide where to start. But keeping in mind the most common problem that our people and viewers and we all face, I think that is pain. Pain is a very important thing. It is a very important, I would say, function in the in the evolution of not only human beings but all the mammals, because pain has been a driving factor to protection, to survival. But at times, this pain becomes a nuisance. So, as you were just telling that there can be pain because of loss of calcium, but we also know that there can be pain because of muscular problems. So, डॉक्टर साहब कैसे डिफरेंशिएट करें कि अगर पाँव में दर्द हो रहा है या हड्डी में, बैक में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो क्या बोन की वजह से हो रहा है कि कोई और वजह है? ऐसा कुछ, कैन यू से समथिंग? या एज आई ऑलरेडी सेड कि हम डिवाइड करते हैं मेनली लिम्स में। ये 3 तरह के पेन जनरली देखे जाते हैं। पहला पेन एज आई सेड बोन पेन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और मे बी बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी इन द बोन। तो ये बोन पेन्स होते हैं। सेकेंड पेन कैन बी रिलेटेड टू बोन ऑल्सो, बट इट इज इन द जॉइंट्स, जो जॉइंट में होता है। जॉइंट में हमारे पास काफ़ी सारे आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। आर्थराइटिस इज बेसिकली वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट्स। जैसे कोई एक सिंपल मशीन घिसती है विथ टाइम, जॉइंट्स भी विथ यूज एंड विथ टाइम दे घिसना शुरू होती है। उसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। इसी के टाइप्स डिवाइडेड हैं, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस इज अ ओल्ड एज वेयर एंड टेयर, इट इज बेसिकली अ वेयर एंड टेयर प्रॉब्लम। सेकेंड इज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस और बाकी आर्थराइटिस देखते हैं। तो पहला पेन का टाइप तो ये होगा कि जो बोन से ओरिजिन हो रहा हो या जॉइंट से ओरिजिन हो रहा हो। सेकेंड पेन एज यू सेड, मस्कुलर पेन जो होते हैं हमारे, मस्कुलर पेन जनरली हमारे पास क्रैम्प्स के साथ आते हैं, या उसका कुछ पॉजिटिव फैक्टर होता है, जैसे ओवर यूज किसी ने किया है या किसी ने स्प्रिंट कर लिया विदाउट हैविंग एनी वार्म अप और समथिंग। तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को या सबको ये बताते हैं कि वार्म अप का क्या इंपॉर्टेंस है, मसल बिल्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पेन, जो मसल ओरिजिनिंग पेन होता है। द थर्ड टाइप ऑफ पेन इज नर्व रिलेटेड पेन और न्यूरोपैथिक पेन। ये जो पेन होता है जनरली बैक केक्स और रेडिएटिंग पेन्स हम लोअर लिम्ब में या अपर लिम्ब में देखते हैं। पेशेंट्स का आके कंप्लेन करते हैं कि हमें झंझनाहट के साथ या सुनपन के साथ ये पेन होता है, और एक कभी कभी करंट जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये होते हैं न्यूरोलॉजिकल पेन्स या नर्व रिलेटेड पेन्स। तो इस तरह से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिम्टम्स पे बेस्ड, या क्या पॉजिटिव फैक्टर या क्या हिस्ट्री रही है उस पर बेस्ड हम लोग ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पेन का ओरिजिन क्या है। तो these are the basic 3 types of pain that we see in the limbs या पैर या हाथ। वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर मुकेश, आपने इतने सरल और सहज तरीके से, आई मीन यू हैव डिस्क्राइब्ड सच कॉम्प्लिकेटेड issues that we might face. So thank you very much for that. You said one word, osteoarthritis. जी। तो अक्सर पेशेंट्स, लाइक आई एम डायबिटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियंस, लोग अपनी एक्सरे की रिपोर्ट लेके आते हैं, उनको पीठ में दर्द हो रहा होता है तो उसमें लिखा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में दर्द होता है तो उसमें लिखा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो कुड यू प्लीज एक्सपैंड अ लिटिल बिट ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस? किस उम्र में शुरू होना शुरू होता है, तो और आगे क्या कैसे बढ़ता है? तो जी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम कॉमनली देखते हैं सोसाइटी में, वो नी जॉइंट में हम लोग देखते हैं, बिकॉज इट्स द मोस्ट लार्जेस्ट जॉइंट भी है और सबसे ज़्यादा वेट उसके थ्रू जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में कॉमनली हम लोग देखते हैं, स्पाइन में, हिप में, बाकी जगह पे भी होता है। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, इट बेसिकली मीन्स दैट इट इज अ वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट विथ एजिंग। जैसे कोई भी मशीन, सच एज एग्जांपल हमारा ब्रेक होता है साइकिल का या गाड़ी का, वो ब्रेक पैड घिस जाता है एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग, मतलब उसका यूज कम हो जाता है, उसकी लॉन्गेविटी लाइफ कम हो जाती है। वैसे ही आर्थराइटिस जो नी में होता है डेवलप, वो भी वैसे ही प्रोग्रेस करता है विथ टाइम। द जॉइंट वियर्स ऑफ और वो पेन देना शुरू करता है। अगर हम पैथोलॉजी देखें, इन बात अगर मेडिकल टर्म्स में बात करें, तो जो जॉइंट सरफेस होता है वहाँ की कार्टिलेज घिसनी शुरू होती है एंड दैट बिकम्स पेनफुल विथ एजिंग। जनरली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हम देखते हैं अपने पेशेंट्स में, दैट डेवलप्स अराउंड
at the age of 50s in the females, पहले होता है फीमेल्स में, और मेल्स में थोड़ा बाद में भी अराउंड 60s. बट आजकल यंगर जनरेशन्स में या यंगर पेशेंट्स में भी हम देख रहे हैं दैट माइट बी बिकॉज ऑफ ओवर यूज, और अगेन बोन हेल्थ जो है वो पहले से कम रही हो. तो ओस्टियोआर्थराइटिस इज बेसिकली एनीथिंग कॉज्ड बाय वेयर एंड टेयर, या जॉइंट घिसते घिसते आपको परेशानी दे रहे हैं. Generally in the knee joint, but also we see in the hip joint, spine में, हर जगह ही wherever the part is moving, that might wear and tear with time. तो ये osteoarthritis हम लोग इसे classify करते हैं और बोलते हैं. Dr. Ramkinkar Jha sir has joined us. Sir, are you there? Yes, sir. Yes. Sir. Am I audible? Yes, sir. We can't see you, but you're audible. So welcome, sir. Thanks for joining. Sir, Can you see? no, we can't see you, sir. Yes, now we can see you. Now we can see you. So, sir, we were talking about, we've talked about different functions of the bone. We've talked about pains and aches, and we started this journey on osteoarthritis. So, if people have pains related to their knees, their hips, neck, back, these are the common areas where people might have osteoarthritis. How does the journey progress? What should be the first step that they should do? And how this disease progresses? कुछ बताइए sir. So, as per my understanding, we are talking about osteoarthritis. That is the age-related one. Yes. There are two categories: inflammatory and non-inflammatory. So, this non-inflammatory, that is the age-related degenerative changes. So, it has a natural course. Natural course means few patients progressing aging is normal. बट दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ये घुटने में जो बदलाव है, चाहे हिप में बदलाव है, ये कंटिन्यूस रहेगा. एंड दिस it progresses to a limit where the medicines doesn't work. We need to intervene surgically. Otherwise, like in 2/3, it's can treat it non-operative way. So to start with, the first line of management is the medical management, that is with the medicines that take care of pain. Secondly, market related is the viscoelastic supplementations. Medicine which increases the lubrication mechanism, like glucosamine, guanidine sulfate, and like some polypeptides. So, pharmacological management. Pharmacological management of physiotherapy, muscle building exercises, some precautions, some physiotherapy intervention modality. I think we can't hear you properly. If that's, I hope it's not with only me. Sir, I hello. Yes. Am I audible, sir? Yes. Now you're audible, sir. Now you're audible. आप अगर कहीं थोड़ा सिग्नल जहाँ बेटर हो वहाँ आ जाए तो I think it would be much better, because I think there's some problem with the signal or Wi-Fi, because your voice was breaking. And then there comes the role of. अभी अच्छा है, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है सर. अभी हाँ अभी बिल्कुल ठीक है सर, अभी बताइए. तो फर्स्ट लाइन सर मैनेजमेंट है हमारा मेडिकल. इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेज, वी मस्ट ट्राई मेडिकल मैनेजमेंट. दैट इज, पहला जो मेडिसिन हमारा देते हैं वो दर्द कंट्रोल करने के लिए होता है सर, एंटी इन्फ्लामेटरी. इन्फ्लामेशन I think there's some problem. Dr. Mukesh, आपके पास आएंगे हम. There's a lot of discussion about इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शंस की. लोग अक्सर बात होती है कि जॉइंट्स में पानी खत्म हो जाता है, सो उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं. आजकल कुछ नई तकनीक आई है, सो प्लीज आप कुछ बताएंगे उसके बारे में. जैसे सर बता रहे थे कि देयर आर बेसिकली, फर्स्ट वी हैव टू ट्राई मेडिकल मैनेजमेंट. इनमें हम पहले तो पेशेंट को पेन रिलीफ देने की कोशिश करते हैं.
then we give some medicines जो joint cartilage के regeneration में help करता है and all that. If this is not working या अभी भी symptoms patient को present होते हैं या patient come at an advanced stage जिनमें इनका function ज़्यादा नहीं रह जाता है, then we go on for some intra-articular injections. Basically जोड़ के अंदर हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं. दो तरह की दवाइयाँ जनरली हम लोग देते हैं. पहला होता है लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शंस जो कि जोड़ के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है. एंड सेकेंड वन इज हाइलोरॉनिक एसिड सप्लीमेंटेशन. तो सेकेंड वन वी प्रेफर मोस्टली ऐसे केसेस में बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल जॉइंट फ्लूइड. जो नेचुरल साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट में होता है उसकी तरह ही हमारा ये सब्सटीट्यूट है. दैट सब्सटीट्यूट्स दैट रोल. ये when we inject these we expect the patients to have decreased pain. We expect the patients, we do not expect that it will completely heal you. ये आपको ठीक कर देगा या आपको जिंदगी भर के लिए अच्छा कर देगा, ऐसा हम कभी पेशेंट को नहीं बोलते. हम ये पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि it will give you time as in कि it will decrease the pain for some time, maybe say 6 years to 1 year to 2 years maximum. In that time you have to adopt a healthy lifestyle, increase knee exercises या muscles strengthening करनी है आपको quadriceps के या knee के around जो muscles है, so that the disease does not progress and you feel better. So these are very effective. Patients हमेशा doubt करते हैं कि ऐसे injections लगवाएं ना लगवाएं, ये questions होते हैं. तो I always suggest कि ये जो intra-articular hyaluronic acid injections हैं, these are very effective if given in rightly chosen patients. अगर बहुत एडवांस आर्थराइटिस है, देयर इज नो जॉइंट स्पेस लेफ्ट एंड देयर इज सम डिफॉर्मिटी स्टार्टिंग डेवलपिंग, तब तो इनका रोल ना के बराबर रहता है. बट यस, इन सम स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस में इनका काफी अच्छा रोल होता है. तो यस, पेशेंट कैन गो फॉर दिस. स्मॉल वर्ड, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होती होगी इसकी? इट डिफर्स फ्रॉम एक्चुअली company to company actually, but approximate cost for one knee joint injection for that dawai is around 10 to 15,000 around. So that's the cost per knee joint per injection. Thank you sir. Now moving over to you, अब इसके बाद क्या स्टेप बचा है? Is the ultimate answer joint replacement, और वो किसको कराना चाहिए? डॉक्टर झा सर. ओके, जस्ट एक मैं पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा. जी सर. जैसे अभी डॉक्टर मुकेश ने अभी जिक्र किया हाइलुरोनिक एसिड का, एंड वेरी सिलेक्टिव पेशेंट सर्टेनली उसका रोल है. सेकंड, एक और इंजेक्शंस आते हैं आजकल, बहुत कॉमन है, वो है पीआरपी विद और विदाउट स्टेम सेल्स. वो भी एक कैटेगरी है और थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 10 से 15 हजार, तो उसकी आप ले लें लगभग 50 हजार के आसपास कॉस्ट पड़ जाती है सारा प्रोसीजर मिला करके. तो एक और वो कैटेगरी है. और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. जब दवाइयों से काम ना चला, फिजियोथेरेपी करा ली, इंजेक्शंस भी लगा लिया. सर्टेनली वो डिपेंड करेगा स्टेज पे. डायरेक्टली जॉइंट रिप्लेसमेंट हम बोले सिर्फ ऑप्शन है तो ऐसा नहीं है. कुछ सर्जरीज होते हैं जैसे कि आप ले लें आर्थ्रोस्कोपिक नी स्टेज 2 और समटाइम्स स्टेज 3 में. कुछ सिलेक्टिव पेशेंट्स में आर्थ्रोस्कोपी नी, जहां पे हम जॉइंट डिब्राइडमेंट करते हैं, लूज बॉडीज वगैरह निकालते हैं, और जो डिफेक्ट होते हैं ना उनको एड्रेस करने का हम ट्राई करते हैं. तो बड़ा मिनिमली इन्वेसिव है, बहुत छोटा प्रोसीजर है, वो भी एक ट्राई किया जा सकता है सिलेक्टिव पेशेंट्स में. इसके बाद एक और कैटेगरी आती है जहां पे हमारा सिर्फ मीडियल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसे बहुत पेशेंट्स हमें मिलते हैं, और खास करके यंगर पेशेंट्स जिनमें की मीडियल जॉइंट स्पेस की आर्थराइटिस आ गई है. तो उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोटोमीज, हाई टिबियल ऑस्टियोटोमीज. तो एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि आपका नेटिव जॉइंट बचा रहता है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के एक डेफिनेटिव एक लाइफ होती है, तो इसमें वो उसका भी डर नहीं रहता है. हाई टिबियल ऑस्टियोटोमीज में तो सिलेक्टिव पेशेंट्स में हम देखें तो एक बहुत अच्छा विकल्प है ये. ठीक है. और यदि पेशेंट की स्टेज ऐसी है जब हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, एडवांस स्टेज है, ट्राई कंपार्टमेंटल है या बाय कंपार्टमेंटल है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट हमारा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. हम फाइनल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बहुत ही कारगर जो है वो इस स्टेज में हमारा आता है जब हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं. ओके सर, एक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे पूछना चाहूंगा
कि अक्सर हम देखते हैं 90 साल के लोग आते हैं वृद्धावस्था में, वो आराम से चल रहे होते हैं, दे कैन वॉक। और कभी कभी 40 साल के लोग भी आते हैं, दे कैन हार्डली वॉक। सो Yes. ऑब्वियसली इफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ वेयर एंड टियर, तो वो तो उम्र के साथ बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, सबको हो जानी चाहिए। तो एक बात तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों में जल्दी होती है, कुछ में देर से होती है। दूसरा, ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि ये जितना हो सके उतनी देरी से हो या हो ही ना? तो मैं आंसर करना चाहूंगा इसका। जी सर। पहली चीज तो है कि सर देखिए, एजिंग मैंने जैसे बताया यूनिवर्सल है, नो वन इज इम्यून टू एजिंग। 100% पॉपुलेशन में होना है, ठीक है। और जब एजिंग होगी तो एजिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, जैसे लुब्रिकेशन मैकेनिज्म वो ड्राई हो जाते हैं, उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं, जॉइंट स्पेस का रिडक्शन भी चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन सभी मरीजों में दर्द नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, 1/3 मरीज जो होते हैं जो एडवांस पहुंचते हैं, जहां पे उनको इतना ज्यादा दर्द होता है कि कुछ इंटरवेंशन करना रहे, लेकिन 2/3 मरीज में ऐसा नहीं होता है। और जैसे कि आपने एज का रेंज बताया कि 40 साल में भी मिलता है, 80 साल में नहीं मिलता है, तो मैं तो और आप उससे और मैं प्रीवियस उसमें जाना चाहूंगा कि 18 साल 20 साल में भी कभी कभी आर्थराइटिस इतनी होती है, लेकिन वो ऑस्टियो आर्थराइटिस नहीं होती है। वो दूसरी तरह के आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी होते हैं जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। हम 20 साल 22 साल में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तीसरी एक और कैटेगरी होती है जहां पे चोट लगने के बाद आर्थराइटिस होती है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। तो 40 साल का भी यदि कोई है युवक युवती जिसको कि पेन हो रहा है, और अपनी, हम एक टर्म यूज करते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, दिनचर्या, यदि दिनचर्या में उस दर्द के कारण परेशानी हो रही है, तो वो 40 साल का हो, चाहे 45 साल का हो या 70 साल का हो, सर्जरी उसके लिए एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपका ये प्रश्न जो है ना 80 साल 40 साल वाला थोड़ा सॉल्व बिल्कुल करने का बिल्कुल ट्राई किया है बिल्कुल। जी। सर, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू इन आवर डेली लाइव्स टू डिले और प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऐसा हम कुछ आहार में, कुछ डाइट में कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं कि जो बेटर हो जॉइंट्स के लिए स्पेशली? सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक बहुत बड़ा हमारे पास चीज है अवेलेबल, जो आपकी जोड़ों की उम्र बढ़ा सकता है। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट बात आएगी सबसे ऊपर, वो है वेट रिडक्शन। यदि ऐसा बोला जाता है साइंस में, एंड इट हैज बीन प्रूवन कंक्लूसिवली दैट 1 पाउंड यदि आप वेट कमाते हो, तो 4 पाउंड का जो है वेट का रिडक्शन होता है। घुटने के ऊपर जो दबाव पड़ता है 4 पाउंड का, 1:4 का रहता है रेशियो। तो सबसे पहला काम आप करें कि वजन घटाएं। दूसरे, पोस्चर्स वगैरह का ध्यान दें। तीसरा, जो माइनर इंजरीज वगैरह हैं उनको बड़ा लाइटली ना लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेनिस्कस इंजरी है, या आप ले लिगामेंट इंजरी है, इंटरक्रूसिएट लिगामेंट है, बहुत कॉमन, बहुत यंग लोगों में होता है, तो उसमें बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं। यदि उन चीजों को सही ढंग से हम उपचार करें, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपने डाइट का बोला, तो बहुत सारे डाइट्स जो है खासकर नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत वेस्टर्न पॉपुलेशन में फेमस है, फिश, मछली, ठीक है, एंड कॉड ऑयल्स जो होते हैं वो बोला जाता है कम करते हैं। वेजिटेरियन डाइट्स में आप देखें तो गांव में और बाकी में कुछ तिल वगैरह होते हैं, तिल वगैरह और भी उस तरह के जो ग्रेन्स होते हैं, बोला जाता है कि चिकनाई जोड़ों की बढ़ाते हैं। और साइंटिफिकली कंक्लूसिवली प्रूवन नहीं है, बट बुजुर्गों का मानना है कि करते हैं ऐसा, लोगों ने देखा है। तो डाइट का थोड़ा लिमिटेड रोल है, वेट रिडक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल है। तो वेट रिडक्शन करें, पोस्चर्स का ध्यान दें, सीढ़ियाँ वगैरह जो हैं थोड़ा सा कम करें। लोगों में एक ये भ्रम भी रहता है कि सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़ेंगे उतरेंगे तो नीज हेल्दी होंगे, तो थोड़ा सा मैं उसमें बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें अपनी कॉन्सेप्ट। जहाँ जहाँ जो लिफ्ट हो, बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी हो, तो वहाँ सीढ़ियाँ अवॉइड करें, लिफ्ट लें, तो वो भी आपके घुटनों का बचाव करेंगी। सर, एक भ्रम लोगों में रहता है कि लोग जो नॉन वेजिटेरियन अगर पाए का सूप लेते हैं तो उससे घुटने लुब्रिकेट, ऐसा कुछ होता है क्या? की जो एविडेंस
लिटरेचर में है नहीं है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जनरेशन बाय जनरेशन देखा गया है। तो पहले पाए कि सूप में की मात्रा होती है, वो भी हीलिंग करती है। बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटीन होती है और दूसरी विटामिन सी होती है। तो पाए के सूप में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग प्रोटीन सोर्स हो सकता है कि वो सर करती हो, कंक्लूसिव प्रूवन नहीं है। थैंक यू, आई थिंक दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक्टिविटी की बात की, तो आजकल खासतौर पे यंग जनरेशन और जो हमारे ऑडियंस होगी, जो यंग एग्जीक्यूटिव हैं, एक दुविधा वाला सवाल हम सबके सामने आता है कि हम जब फिजिकल एक्टिविटी करें, इज जॉगिंग गुड और वॉकिंग गुड? क्योंकि सम पीपल से दैट जॉगिंग इज एक्चुअली नॉट गुड बिकॉज इट हार्म्स योर नीज। सो इसको भी आप थोड़ा दूर करेंगे, इस भ्रम को? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली वियर एंड टियर है। वियर एंड टियर, जितना ज्यादा वियर होगा उतनी ज्यादा आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस होंगे। दैट डजंट मीन कि जो एक व्यक्ति है जिंदगी भर लेटा रहे, और जिंदगी भर लेटा रहेगा तो आर्थराइटिस भी नहीं होगी, ये भी बात प्रूवन है। लेकिन अ, हमें एक जगह बैलेंस करना पड़ेगा हमारे एक्टिविटी लेवल को, लाइक मैं एक एग्जांपल दूंगा, ट्रेडमिल। ट्रेडमिल बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर है एमोंग जो जो वर्क वर्क जो करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं ना, उनमें ट्रेडमिल बहुत अच्छा वे नहीं है। नेचुरल वे में यदि सॉफ्ट सरफेस पे आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो जो इम्पैक्ट है, जो कांटेक्ट इम्पैक्ट है, वो आपका बॉडी आपको अपने आप सेंस दे देगा। बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो फिट नहीं है जॉगिंग के लिए और रनिंग के लिए, तो बॉडी उनको अपने आप सिग्नल दे देगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग चालू हो जाएगी। दैट मीन्स बॉडी का ये जो मैकेनिज्म है वो फिट नहीं है उनके लिए, तो वो सिंपल सिर्फ वॉकिंग करे। ठीक है, और जो जॉगिंग और रनिंग कर सकते हैं नेचुरल नेचुरल सिनेरियो में, वो रनिंग भी करें, कोई इशू नहीं है उसमें। उबड़ खाबड़ ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा चढ़ाई ना हो। जी। आई मैं थिंक एक आपने पॉइंट इस एक, पे हाँ ऐड हाँ, करना प्लीज चाहूँगा। प्लीज। जी, हाँ, तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मैं जैसे हम सोसाइटीज़ में रहते हैं और यहाँ पे हम साथ वालों को देखते हैं कि वो जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। तो आई वुड से कि सबसे पहला ज़रूरी है कि बॉडी शुड बी प्राइम्ड। मतलब यू शुड स्टार्ट इनिशियली विद वॉकिंग, देन ब्रिस्क वॉकिंग, देन आप जॉगिंग स्टार्ट किया 5 मिनट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मन किया कि आज से हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, तो आज से हम जॉगिंग स्टार्ट कर देंगे फॉर 30 मिनट्स। तो आइडियली यस, आपकी वेरी बॉडी नाइस, क्या वेरी करा सकती है आपसे पहले ये होना चाहिए। ग्रेजुअली यू हैव टू प्राइम योर सेल्फ, देन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दैट यू आर डूइंग। सेकेंड थिंग जो सर ने बोला, हमेशा सॉफ्ट सरफेस, ग्रास या ऐसे सरफेस पे जॉगिंग करना अच्छा रहेगा। हम सोसाइटीज में और देखते हैं कि लोग रोड पे, पेवमेंट्स पे, इन पे भी जॉगिंग कर रहे होते हैं। दैट इज नॉट एडवाइजेबल। थर्ड थिंग इज एक अच्छा शूज होना जो इम्पैक्ट ले रहा हो, जो घुटनों के इम्पैक्ट को कम कर रहा हो, वो भी जरूरी है। फोर्थ थिंग, ट्रेडमिल, जैसा सर ने बोला, दैट आई एग्री। ट्रेडमिल का एक ऑल्टरनेटिव है, आजकल जिम्स में होते हैं क्रॉस ट्रेनर्स, जिसमें यू आर नॉट एक्चुअली पुटिंग प्रेशर ऑन नी जॉइंट, एट द सेम टाइम यू कैन एक्सरसाइज योर अपर लिम एंड लोअर लिम। तो ट्रेडमिल से बेटर है क्रॉस ट्रेनर्स फॉर जो जिनको सिम्टम्स होने लगे हैं, या जैसे सर ने बोला जिसको स्वेलिंग आ रही है, जिनके इम्पैक्ट से बॉडी खुद ही बता रही है कि मत करो ऐसे इम्पैक्ट वाले काम, वो क्रॉस ट्रेनर मशीन का यूज कर सकते हैं इन जिम्स। तो दीज आर ऑल्टरनेटिव्स एंड प्रिकॉशंस। थैंक यू। आई थिंक आप दोनों ने एक बहुत सुंदर बात की कि आप अपने शरीर को सुनिए, बिकॉज दिस इज वन थिंग वी एट टाइम्स स्टॉप लिसनिंग टू, एंड आई थिंक दिस concerns all other organs also. It concerns heart, it concerns brain. और अगर हम ध्यान से अपने शरीर को सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम कम से कम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और आई थिंक सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वेट की, बिकॉज मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ विशियस साइकिल। आपको मोबिलिटी के, आपको वेट कम करने के लिए मोबिलिटी भी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उस चक्रव्यूह में आप जो है अपने शरीर को कहीं नुकसान न कर पाए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना जरूरी है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, और सवाल मेरे जहन में तो बहुत सारे हैं। यंग जनरेशन में अक्सर लो बैक पेन होता है और उसकी वजह से और बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं आंखों में। सो वुड यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट?
तो राजेश जी, बैकिक जो है एक मॉडर्न एपिडेमिक है, ठीक है। बेसिकली क्या है, इंसान इवोल्यूट हुआ है एनिमल से। वो चार चार तरह से चलते थे हम, अब वो इरेक्ट होकर के सिर्फ दो पे चलते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस अगेंस्ट इवोल्यूशन। तो बैकिक होना लाजमी था। और रही कसर जो हमारी पूरी कर दी हमारे लाइफस्टाइल ने। लेट करके टीवी देखना, लेट करके पढ़ना, पोस्टर देखो, कभी किसी का करेक्ट पोस्टर नहीं होता है। एक टर्म होता है एर्गोनॉमिक्स की, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर वर्क प्लेस। हमारी आदत है कि हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं वर्क प्लेस से, रेदर देन वर्क प्लेस शुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर पोस्चर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, हमें ना डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि बैकएक किस तरह का बैकएक है। दो या तीन तरह के बैकएक में कॉमन लेमैन्स टर्म्स में मैं बताना चाहूंगा। एक होता है बैकएक जो कि इंफ्लामेटरी होता है, जिसमें आर्थराइटिस भी होती है और बाकी चीजें एंक्लोनाइजिंग होती है। तो हमें उसके अर्ली लक्षण डिटेक्ट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे वो स्टिफ हो जाता है और इरिवर्सिबल हो जाता है। सेकेंड जो बैकएक होता है वो होता है डिस्क प्रोलैप्स के कारण। बहुत सारे वेट लिफ्टर्स, बहुत सारे एंथुसियास्टिक जो होते हैं, सडन वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर घर पे सामान को उठाते हैं तो डिस्क स्लिप हो जाता है, जिसे कॉमन टर्म बोलते हैं डिस्क स्लिप। डिस्क हो गया, डिस्क हो गया मतलब डिस्क अपनी जगह से खिसक गया और नसों को अब वो दबाव दे रहा है। तो उसको भी हमें अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हमारे हैं वो हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हमारे पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यदि हम कैटेगराइज कर पाए इन तीनों चीजों में तो बचाव हमारे लिए बहुत ही संभव है। 80% जो हम अपने ओपीडीज में देखते हैं बैकएक, वो फंक्शनल होते हैं, वो पोजिशनल होते हैं। तो उनको तो आराम से रोका जा सकता है, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर पोस्टिंग। और जैसे डॉक्टर मुकेश ने लास्ट उसमें बोला था, जैसे रनिंग वगैरह करते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं। तो अचानक ना करें कोई एक्टिविटीज वगैरह, कोई एक्सरसाइज वगैरह, प्रॉपर वे में करें तो बैकिक वगैरह से भी उसमें बचाव होगी आपकी। बहुत बहुत अच्छे सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि अभी एर्गोनॉमिक्स की बात करिए, हमें थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि हमारे ज्यादातर श्रोता और दर्शक ऑफिस गोअर्स हैं, कि गलत और पुअर एर्गोनॉमिक्स की वजह से और क्या क्या दिक्कतें कॉमनली होती हैं लोगों को, जो विच सबसे कैन बी। कॉमन प्रिवेंटेड, विच कैन बी प्रिवेंटेड, सर्टेनली बहुत सटीक प्रश्न है आपका। तो जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम हम अवॉइड कर सकते हैं वो बैकएक है। सेकेंड, नेक पेन। नेक पेन बहुत ही कॉमन होता है यदि आपके डेस्क लेवल सही ना हो, लैपटॉप का लेवल सही ना हो, आप झुक के काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो नेक के भी इंसिडेंस बहुत हाई है। तीसरा है सर नी पेन। नी नी पेन के बहुत हाई इंसिडेंस पाए जाते हैं यदि पोस्चर और बाकी एर्गोनॉमिक्स ठीक ना हो। इसके अलावा रिस्ट पेन, खास करके जो लैपटॉप और उसमें रहते हैं, शोल्डर पेन, ये सब भी हम बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक प्रॉपर पोस्चर और एर्गोनॉमिक्स से। थैंक यू सर, दैट वाज रियली वंडरफुल। और संक्षिप्त में, अभी हम देख रहे हैं हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म। क्या इन बीमारियों से भी हड्डियों पे या जोड़ों पे, इनकी बीमारियों पे कोई असर होता है सर? जी, मेडिकल इश्यूज जितने भी होते हैं, थायराइड हो गई, डायबिटीज हो गई, बाकी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बोन की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस के इंसिडेंट्स पाए जाते हैं, बोन वीक हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाती है। तो सर्टेन इन मेडिकल कंडीशंस में, खास करके आप कोविड के बाद आप देखोगे स्टेरॉइड्स इतने ज्यादा चले थे, तो उनके बाद भी एवास्कुलर नेक्रोसिस जो होती है हिप की वो चालू हुई, ऑस्टियोपोरोसिस चालू हुई। तो इनसे होती हैं सर। थैंक यू सर। अब आपने ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया है, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। हालांकि हमने इसके बारे में शुरुआत में भी जिक्र किया था। डॉक्टर मुकेश, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा हमें और बताइए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, कि सरल शब्दों में हमारे श्रोता समझ पाए, किस उम्र में शुरू होता है, लक्षण क्या होते हैं, कब डाउट करें, और इसको रोकना क्यों जरूरी है? So
मैं आंसर करूं इसको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में? हाँ आप करिए, कोई आप एनी ऑफ यू, हाँ आप तो करिए। ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली कॉमन टर्म्स में ये है कि बोन की स्ट्रेंथ कम हो गई है। बोन की स्ट्रेंथ कम क्यों होती है? कि बोन में जो कॉम्पोजिशन नीडेड है वो बोन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज होता है कि न्यूट्रिशनल होता है। हमारे जो डाइट है या जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं वो इनफ नहीं होते हैं बोन की स्ट्रेंथ को या बोन की क्वालिटी को बना पाने के कारण। अगर इसकी बेस लाइन पे हम देखें तो ये होता है कि फीमेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 30 years बोन स्ट्रेंथ स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये नेचुरल होता है, इट विल डिक्रीज बाय इट्स ओन। बट अगर हमें उसे मेंटेन करके रखना है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। मेल्स में यही चीज थोड़ा लेट प्रेजेंट करता है। तो मेल्स की हड्डी थोड़ी लेट तक स्ट्रांग रहती है, बट उनके में मेल्स में भी बोन स्ट्रेंथ एज के साथ साथ कम होने लगती है। हम क्या कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए वो हमें देखना पड़ेगा। व्हाट वी कैन डू इजीली इज अ वेरी गुड डाइट। डाइट रिच इन कैल्शियम, विटामिन डी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जो कि बोन की बनाने में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अमाउंट ऑफ विटामिन डी दैट इज इन अ बॉडी। विटामिन डी एज वी ऑल नो हमारे स्किन में सिंथेसाइज होता है डायरेक्ट सन एक्सपोजर से। बट अगर स्टडीज को देखी जाए तो 90% ऑफ द इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि हमारा एक तो सन एक्सपोजर में भी कम है, हम ब्लैक स्किन है, मेलानिन हमारे में ज़्यादा है। तो जो सन हमें मिल रहा है वो इनफ नहीं है विटामिन डी बनाने के लिए। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स पे भी रिलाई करना पड़ता है। झा सर प्लीज। एक पॉइंट मैं बस ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर मुकेश ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि बोन पोरस हो जाता है, कैल्शियम का कम अमाउंट होता है उस बोन में। दैट मीन्स बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। और इसमें एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि बोन स्टॉक जो बनता है हमारा वो पीक हो जाता है 30 साल में। तो अच्छी बुनियाद जो होती है बोन, अच्छी इमारत की जो बुनियाद होती है वो बहुत समय पहले बनता है। तो बचपन में जो ध्यान बच्चों में विटामिन डी लेवल बाकी चीजों, तो एक वो बनेगा 35 साल तक जो उसका वो कैल्शियम रेट रहेगा वो फिर लंबा। अब जब मैं एक ये पॉइंट कहूँगा कि बच्चों में अच्छी डाइट और उसकी जो है बस दीजिए, वो एजुकेशन दी जाए कि बोन्स जो होगा 30 से 35 तक होगा। सर आपकी आवाज मुझे तो एकदम कट के आ रही थी, सो फ्रैंकली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अगर डॉक्टर मुकेश, इफ यू कुड एलैबोरेट ऑन व्हाट सर वांटेड टू से। आई थिंक आवाज तो कट के आ रही थी, बट आई थिंक सर वाज इंसिस्टिंग कि ये सबको पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन मेंटेन अ बोन स्ट्रेंथ। एवरीबॉडी शुड नो कि बोन अगर स्टॉक, बोन हाँ स्ट्रेंथ अब आ रही है, मेंटेन नहीं अब आ होती रही तो है, व्हाट इज। हाँ अब आ रही है। सर अब आ रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों की, अगर हड्डियां कमजोर हो जाएं तो क्या होता है? ओके, नहीं Fractures, because this जैसे is one राजेश of the most important thing, fractures in the elderly, hip fracture, and that can actually have fatal consequences. They can be bedridden for months. So this is very important for especially for elderly people to understand the importance of maintaining bone health, preventing osteoporosis, and taking supplements. Sir, तो राजेश जी, आप कुछ बोल रहे थे? राजेश जी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है सर। ओके ओके, तो मैं बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बोल रहा हूँ। हमारा पीक जो बोन स्टॉक होता है वो 30 साल से 35 साल तक ही बनता है। दैट मीन्स कि हमें अच्छा बोन स्टॉक बनाना है तो इसकी शुरुआत बचपन से होगी। बच्चों में दूध, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट की शिक्षा दी जाए, क्योंकि 30 से 35 के बाद हमारे बोन स्टॉक्स नहीं बनते हैं। ओके सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि जो भी करना है हमें तो 30 साल की उम्र से पहले पहले ही करना है। सर आपने BMD बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में बात की, और ये ही एक जांच भी है, टेस्ट भी है। तो किस उम्र से कराना चाहिए और किसको कराना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में, कुछ आप गाइडेंस देंगे? तो BMD जो है बेसिकली एक मेजरमेंट है, बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट है। उसके लिए हम मशीन यूज करते हैं सर, उसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। डेक्सा स्कैन करके एक मशीन होती है जो एक्यूरेट देती है। अदरवाइज आजकल पोर्टेबल मशीन्स भी होती हैं जो आपको एक रफली एक मेजरमेंट दे पाती हैं। तो रिकमेंडेशन है कि फीमेल्स आफ्टर 45 एवरी 5 years एंड आफ्टर 50 एवरी 2 years रिपीट होनी चाहिए। या कोई मरीज जो प्रोलॉन्ग मेडिकल इलनेस है जिसकी,
या फिर सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, जैसे थायराइड के हो गए, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हो गए, कोई बीमारियां के लिए ले रहे हैं, तो उनको इरिस्पेक्टिव एज एक बार कराना चाहिए, जस्ट टू सी द बेस लाइन बोन मिनरल डेंसिटी। तो एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या चीजें खानी चाहिए। दूध तो हम सब जानते हैं, दूध के अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं जिससे कैल्शियम बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं खानी चाहिए जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। तो थोड़ा सा आप दोनों में से कोई इसके बारे में एलैबोरेट करेंगे प्लीज। तो डॉक्टर मुकेश, वांट टू आंसर दिस? हाँ, एज वी ऑल नो कि दूध सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है कैल्शियम के लिए। दूध के अलावा भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हमारे पल्सेस हैं, फिश या नॉन वेजिटेरियन डाइट जो आते हैं वो भी रिच हैं कैल्शियम में। विटामिन डी के लिए हमें सन एक्सपोजर तो चाहिए ही चाहिए। विटामिन डी के लिए भी ऑयल्स हैं या और भी चीज़ें हैं जो विटामिन डी रिच होते हैं। B12 जो विटामिन है, विटामिन B12, ये हमारे नर्व फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली ये भी हमारे अंडर आता है, हमारे पेशेंट्स में देखा जाता है। तो B12 का रिच सोर्स तो नॉन वेजिटेरियन डाइट माना जाता है, या फिर वेजिटेरियन डाइट में आई थिंक लेग्यूम्स आर रिच, जैसे हमारे चने छोले राजमा दालें जो होती हैं वो रिच होती हैं B12 में। तो ये सब चीज़ें हैं जो बोन हेल्थ को बनाती हैं। क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो विटामिन मतलब कैल्शियम या इनके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करे। बट एक चीज़ है कि जो विटामिन डी हम लेते हैं एज ए सप्लीमेंट, वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो हम हमेशा कहते हैं किसी डाइट के बाद ले। तो ये एक चीज़ है जो ध्यान में रख सकते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स अगर आपको डॉक्टर ने दिया है तो यू शुड टेक इट आफ्टर अ मील, बिकॉज इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा उस पर। थैंक तो यू, थैंक यू। इसमें तो हाँ इसमें सर। इसमें 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 दो पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये है कि हमेशा हमारी डाइटरी जो सप्लीमेंट्स हैं वो पूरा नहीं कर पाती हैं, तो हमें कुछ स्थितियों का ध्यान रखना है। जब आप कितना भी कैल्शियम खा लो डाइट से, तो आपकी भरपाई नहीं कर पाएगी। प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन हो गया, मेडिकल इलनेस हो गए, तो ये ऐसी कंडीशन है जहां आपको कैल्शियम के टैबलेट्स चबाने पड़ेंगे, आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की एक कैपेसिटी है कि उसके बियॉन्ड वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। नंबर वन। नंबर टू, जैसे डॉक्टर मुकेश ने बोला कि विटामिन डी बहुत जरूरी है, सिर्फ कैल्शियम नहीं, विटामिन डी, क्योंकि एक मीडिया है, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। तीसरा, जो क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, मैं थोड़ा अपने क्योंकि मरीजों को ज्यादा बताता हूँ, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गए, आपको आपके निकोटिन हो गए, आपके जैसे टी टी और कैफीन हो गए। टी और कैफीन वगैरह ना, लोग सोचते हैं नहीं हम चाय पी रहे हैं, दूध है इसमें, दूध है, तो वो दूध किसी काम का दूध नहीं है, क्योंकि वो जो जो ये चाय और कॉफी के कंपोनेंट है उसको वो कम कर देते हैं, एब्जॉर्प्शंस कम कर देते हैं। बस मैं इतना ऐड करना चाहूंगा। ये आपने बहुत अच्छी और बहुत सही बात बताई कि चाय और कॉफी में जो दूध होता है वो उस प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसका वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं होता जो खाली मिल्क या पनीर या इन चीज़ों का होता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने ये सब बात। एक बात और बताइए सर, बहुत सारे लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेने में डरते हैं क्योंकि आजकल हार्ट की दिल की बीमारियों के बारे में बहुत सुनते हैं। तो कितना लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, क्या ज्यादा कैल्शियम लेने से वो हार्ट में डिपॉजिट होने लगता है, ऐसा होता है क्या? तो कैल्शियम की जो हमारी रिक्वायरमेंट है यूजुअली वो मैक्सिमम 1 ग्राम रहती है, और अनलेस प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड वगैरह हो जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वहाँ 1.2 तक भी हमें चाहिए होता है। अब यदि मैं एक जो मिथ आपने बोला कि स्टोन, पहला चीज बड़ा वो कॉमन है कि स्टोन हो जाएगा कैल्शियम खाने से। तो यदि स्टोन होने की टेंडेंसी है, हेरिडिटरी या फिर मेडिकल, तो बिना कैल्शियम सप्लीमेंट के भी स्टोन बन जाएंगे, क्योंकि हमारे खाने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाए जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, एक्सेस ऑफ कैल्शियम सर्टेनली हमें अवॉइड करना चाहिए। ये भी प्रूवन है कि एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है, एक तो कोई बेनिफिशियल नहीं है, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो आप लोगे एक्स्ट्रा डोज में, वो बेनिफिट नहीं है, वो यूरिन के साथ निकल जाएंगे और कुछ हार्म करके भी जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह में कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ा स्पेसिफिकली बोलते हैं कैल्शियम का ना सप्लीमेंट्स थोड़ा अवॉइड करने के लिए, तो उनकी बात सुने। थैंक यू सर। सर मैं अपने लिए एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हाउ टू डिफरेंशिएट ऑन सिम्टम्स
रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ ऐसा दर्द का समय या दर्द का प्रकार कुछ बता सकते हैं? पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री। घर में गठिए की यदि हिस्ट्री है, मदर फादर दादा दादी नाना नानी, तो एक पहली इंडिकेशन मिलती है। सेकेंड इंडिकेशन होती है पॉलीआर्थराल्जिया, मतलब मल्टीपल जॉइंट पेन। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली नी को इन्वॉल्व करता है या फिर सेकेंड हैंड को इन्वॉल्व करता है। लेकिन यदि मल्टीपल जॉइंट पेन है इकट्ठे एक साथ बहुत सारे, अर्ली मॉर्निंग में आप उठे हैं और आपके हाथों में अकड़न है, और वो अकड़न जो है 30 मिनट से ज्यादा चल रही है, स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट्स, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है। सबसे कॉमन ये होते हैं। एज भी एक फैक्टर है जो हम और कंसिडर सेकंड एज हो सकता है, अर्ली एज में रूमेटॉइड वगैरह जो है खास करके बचपन में भी चालू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 10 साल 12 साल में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड आपको मिलेंगे, जब 45 के बाद 50 के बाद आपको। थैंक यू सर। इसके बारे में चर्चा करना उचित इसलिए समझा क्योंकि बहुत सारी और बीमारियां हैं जिसके बारे में पता है एक्चुअली जॉइंट पेन से चलता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, क्योंकि इन बीमारियों का असर शरीर के और अंगों पे पड़ता है, जैसे आंखों में पड़ता है, आंखों में स्वेलिंग हो सकती है। सो अगर आपको जोड़ों में दर्द है, सो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि वो किस वजह से है, किस प्रकार का दर्द है, उसके अनुसार आपका इलाज होगा। हो सकता है शरीर में कुछ और भी समस्या है, कोई और भी दिक्कत हो, जो डॉक्टर ही सही तरह से एडवाइस कर पाएंगे। I think today's session was very informative. I think it was extremely informative. I'm so thankful to both of you for giving so much time to us. Now I would request Sri Anil Rajput ji sir to give a vote of thanks and conclude. Sir, you are muted. Thank you very much, Dr. Kesri, for keeping the session very engaging. But today you didn't ask both of them that what is their one-liner for the audience. What is the message that they would like to give to the audience? So maybe I request both the doctors to give a message to the audience before I start. Thank you. तो मैं मुझसे चालू करते हैं। तो मैं 2 लाइन से बोलना चाहूंगा, बैलेंस डाइट एंड healthy lifestyle, that's the two key to maintain our bone and joints healthy. Yes, agree Lifestyle with and झा सर कि balance ये तो diet. दोनों एकदम ही इम्पोर्टेंट हैं। एंड फ्रॉम माय साइड आई थिंक जो डिस्कशन के बीच में भी आया था कि लिसन टू योर बॉडी, जो भी सिम्टम्स या जो भी बॉडी आपको बता रही है, यू हैव टू लिसन टू इट एंड वर्क एंड फंक्शन अकॉर्डिंगली। Thank you. Thank you very much for the lovely message for our audience. It's not enough to thank doctors on this platform because they come and share their valuable experience, their lifetime experience with our audience, and I must compliment them for keeping their discussion and engagement very simple and easy for people to understand. Dr. Mukesh Shankar and Dr. Ram Kinkar Jha, you have very well explained, how, what is how calcium is a storehouse and the importance of calcium for our body. How daily lifestyle modification is important. What is the importance of weight reduction in your body? It has got implication of 1:4, and it's not so easy for people to understand that it is very critical to keep your well balanced weight for you to not only live healthy long, but also it affects your quality of life. How vegetarians and non-vegetarian diets are different, and people who are only vegetarians, how they have to focus on some of the things that they would be otherwise ignoring.
how posture is critical in your life, and also telling people that you should not strain your body. If you can use lift instead of staircase, busting that myth that using staircase is always good for your body, whilst it is important to keep your physical fitness, but at the same time you have to balance. And very correctly, Dr. Shankar has said that listen to your body. You listen to your body, body will tell you what you should be doing and what you should not be doing. And healthy lifestyle, balanced diet is a key to your healthy, good, happy, long life. So I'd like to thank both of you for coming and sharing your wonderful experience, and we look forward to remaining engaged with you in our future endeavors. Thank you very much. Most great. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir.